students. In this video we are going to discuss a new algorithm based on dynamic programming which is called as Bellman-Ford algorithm. If you remember, while teaching you Distra's algorithm, which was used for the same purpose, that is to design a shortest path tree, I have told you that Distra's algorithm can be applied to only those diagrams which have positive weights. Okay? And at the same time I had also told you that Bellman-Ford algorithm can be applied to find out the shortest path tree in case the graph has some negative weights. Okay, so in today's video we are going to see how Bellman-Ford works in case there are any negative weights available in a graph. Okay, so let's see the algorithm first. More or less the same concept is being used in Bellman-Ford as it was used in Distra's algorithm. That is, we are going to use the same data structures that we have used in Distra's algorithm as well. That is Q of V, which is a vertex or array of all vertices. D of V, it is an array which stores the distances of all vertex from the source. So in this particular array we are going to store the distance of a vertex from the source. Okay, as far as it is calculated at a particular stage. Later on these distances may get updated. Okay, and then we have a third array which is called as pi of V, which stores the parent information. यानी कि अगर हमें एक पर्टिकुलर वर्टेक्स का एक डिस्टेंस मिला है तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या अभी तक का जो भी डिस्टेंस हमें मिला है, ओके, वो शॉर्टेस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. वो डिस्टेंस हमें कौन से नोड से जाकर के हमें वो डिस्टेंस मिलता है, ओके, वाया विच नोड वी गेट दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस, तो वो जो पेरेंट नोड है उसकी इन्फॉर्मेशन हम पाई ऑफ वी में लिखते हैं. सो द सेम डेटा स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड. ओके, now talking about the method or the process, if you remember in Distra's algorithm, at every step, in each step, what we were doing, we were extracting the minimum vertex. Okay, minimum vertex means what? Minimum vertex means we were extracting that particular vertex or node from this array which had the minimum distance values. Okay, so say for example these are 5 vertex and we have stored the distance values of all the 5 vertex. So at every step we were considering, we were selecting or we were extracting that node which has the minimum distance value. That was in Distra's algorithm. Why we were doing so? Why? Because Distra's algorithm was based on greedy strategy, and when we are talking about greedy strategy we always look for the simplest form, okay, with the optimal solution और ऑप्टिमल सिलेक्शन. ओके, तो क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट पाथ ट्री बनाना है इसलिए हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला वर्टेक्स सिलेक्ट करते थे डिस्ट्रास में. बट दैट विल नॉट बी द केस ओवर हियर. यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि मिनिमम डिस्टेंस वाले नोड को एक्सट्रैक्ट करना है. इनफैक्ट हम हर नोड का कॉरेस्पॉन्डिंग एडजेसेंट नोड जो है वो क्या है और उसके वैल्यूज क्या अपडेट हो सकते हैं ये चेक करेंगे. वाई? बिकॉज ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग को बिलोंग करता है. Bellman-Ford जो है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग की स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है. और अकॉर्डिंग टू डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्ट्रैटेजी वी ट्राई ऑल पॉसिबल ऑप्शंस. हम सारे ऑप्शंस को ट्राई करते हैं और सारे ऑप्शन से हमें कुछ वैल्यूज मिलती है. सारे ऑप्शंस ट्राई करने के बाद हमें कुछ रिजल्ट मिलता है. उसमें से जो ऑप्टिमल है, उसमें से जो हमें बेस्ट लगता है वो फिर हम चूज करते हैं. बट ऐसा ग्रेडी स्ट्रैटेजी में नहीं होता. ग्रेडी स्ट्रैटेजी में हम वही ऑप्शन चूज करते हैं जो हमें उस टाइम पर लगता है कि हमें शॉर्टेस्ट वैल्यू दे सकता है. ग्रेडी स्ट्रैटेजी में हम लोकल ऑप्टिमाइजेशन यानी कि हर स्टेप में ऑप्टिमल पॉसिबिलिटी को चूज करना, उसको हम लोकल ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं. और फाइनल ऑप्टिमाइजेशन यानी कि ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन, दोनों को ध्यान में रखते हैं ग्रेडी स्ट्रैटेजी में. लेकिन डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम लोकल ऑप्टिमाइजेशन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते. हमारा एम है कि फाइनल आंसर जो है यानी कि ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन अचीव करना, ये हमारी एम रहती है. ओके, सो देखते हैं ये कैसे वर्क करता है. So I have a weighted digraph, and total number of edges, total number of vertex. If you see, there are 5. Okay. So one thing to remember in Bellman-Ford algorithm is if there are n number of nodes in the graph, then you have to go for n-1 number of passes. That means आपको n-1 steps करनी होंगे या iterations करनी है या passes करनी है. ठीक है, और एट द एंड ऑफ n-1 पासेस यानी n-1 पासेस के बाद फाइनली जो आपको ट्री मिलेगा वो आपका फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ ट्री होगा. ओके, ये गारंटी है. लेकिन कई बार Bellman-Ford एल्गोरिथम का एक ड्रॉबैक है कि कई बार जो नेगेटिव वेट्स की वजह से
ग्राफ में नेगेटिव साइकिल्स हो जाती है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और ऐसे ग्राफ जहाँ पे नेगेटिव साइकिल्स है, नेगेटिव वेट साइकिल्स है, वहाँ पे बेलमन फोर्ड करेक्ट रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ओके, तो फॉर द टाइम में हम देखते हैं, हम विल सी लेटर ऑन व्हाट डू वी मीन बाय नेगेटिव साइकिल्स। फॉर द टाइम बिंग लेट्स ट्राई टू नो कि ये पासेस कैसे करें। जैसे मैंने कहा n नोड्स है तो n-1 पासेस। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में 5 नोड्स है, 5 वर्टाइसेस है, दैट मीन्स हमें 4 पासेस तो करनी ही है। वैसे सॉल्व करते वक्त देखा जाए तो हो सकता है कि हम ज़रूरी है कि n-1 पासेस हमें पूरे करने ही पड़े, हो सकता है उसके पहले ही आपको शॉर्टेस्ट पाथ ट्री मिल जाए। कैसे पता चलेगा कि हमको एक पर्टिकुलर पास खत्म होने के बाद शॉर्टेस्ट पाथ ट्री मिला है कि नहीं मिला है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एज वी गो ऑन। ओके, तो सबसे पहला स्टेप करते हैं। देखिए यहाँ पे ये ग्राफ दिया है और पहला काम है हमको इसको, इस ग्राफ को इनिशियलाइज करना। तो इनिशियलाइज करने का मतलब क्या है, शुरू में हमने अभी तक एसपीटी नहीं बनाया है, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ ट्री बनाया नहीं है, तो हमें पता नहीं है कि सारे वर्टेक्स का सोर्स नोड से डिस्टेंस क्या है। यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको सोर्स नोड कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है, ए को सोर्स नोड कंसिडर कर रही हूँ। ये क्वेश्चन में दिया रहता है कि आपको किसको सोर्स नोड कंसिडर करना है, ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं मेंशन है तो आप किसी भी नोड को सोर्स नोड कंसिडर कर सकते हैं। तो मान लीजिए ए आपका सोर्स नोड है, तो आपको क्या करना है, ए से बी तक, ए से डी तक, ए से सी तक, ए से ई तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है वो कैलकुलेट करना है। ये हमारा एम है, ठीक है। और ऐसा आपको एक ट्री, शॉर्टेस्ट पाथ ट्री तैयार करना है। और इनिशियली क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, अब ए क्योंकि सोर्स है तो सोर्स से सोर्स का डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। सो विल राइट हियर 0, ठीक है। तो हर नोड के साइड में मैं उनके डिस्टेंस की इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से लिख रही हूँ। ओके, अभी तक मैंने कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं किया है, यानी कि पासेस स्टार्ट नहीं किए हैं, आइट्रेशन स्टार्ट नहीं किए हैं। मुझे नहीं पता कि बाकी सारे नोड्स का सोर्स नोड से डिस्टेंस क्या है, कितना है। तो इसलिए मैं अज्यूम कर रही हूँ कि सबका जो डिस्टेंस है, सोर्स नोड से जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। So in the initial state, I will assume that the distance of all the nodes from the source is infinite. That means not known. Infinite means not known. We do not know, okay, because we haven't constructed the SPD yet. Okay. So this information we are going to write down in the first table. Okay. This is the initialization table. So क्या information हमें लिखना है? Okay. So हम सारे यहाँ पे डी ऑफ ए में क्या करना है, हमें सारे डिस्टेंस की वैल्यूज लिखनी है। तो ए का डिस्टेंस कितना है, 0, बी का कितना है, इनफाइनाइट, और बाकी सारे का इनफाइनाइट है, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पता। डी ऑफ बी मीन्स व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यू हैव गॉट टिल नाउ। अभी तक आपको क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिला है, सोर्स नोड से, यानी कि ए से बी का, ए से सी का, ए से डी का, ए से ई का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अभी आपको क्या मिला है वो हम लिख रहे हैं। तो अभी तो हमें पता ही नहीं चला, इसलिए हमने इनफाइनाइट लिखा है। अब पाई ऑफ ए में जैसे मैंने कहा आपको पेरेंट नोड का इन्फॉर्मेशन लिखना है। तो ए का पेरेंट क्या होगा, यानी आप ए कौन से नोड से होकर के ए तक पहुंचोगे, ए से ही ए पहुंचना है, यानी ए का पेरेंट क्या है, ए। और बी सी डी ई को रीच अगर आपको करना है, यानी बी सी डी ई वाले नोड्स तक अगर आपको पहुंचना है, तो कौन से नोड से होकर के आप बी सी डी ई तक फाइनली पहुंचेंगे, यानी उन नोड्स का पेरेंट नोड क्या होगा, प्रीवियस नोड क्या होगा, ये अभी तक पता नहीं है, क्योंकि हमने एसपीटी बनाया नहीं है, इसलिए जो चीज़ पता नहीं है ये हमारा इनिशियल टेबल हो गया। ओके, अब हम पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, विल स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट। तो मैं यहाँ पे जो कैलकुलेशंस है वो ग्राफ में कर रही हूँ, इससे आसानी हो जाती है, अदरवाइज बहुत नंबर ऑफ टेबल्स बढ़ जाते हैं। तो मैं ग्राफ में ही आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हमें नए डिस्टेंसेस और नए पेरेंट्स यानी कि पाई ऑफ ई की वैल्यू मिलेगी। ओके, और देखिए हम सबसे पहले चूज करेंगे नोड ए को। आपको एक एक करके सारे नोड्स को सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रेस में हम मिनिमम नोड को सिलेक्ट करते थे और उसी के एडजेसेंट नोड्स की वैल्यूज को हो सके तो अपडेट करते थे। कभी होता था अपडेट, कभी नहीं होता था, यानी जो भी मिनिमम वैल्यू थी हम वही उसी से अपडेट करते थे। हम कौन से नोड को सिलेक्ट करते थे या एक्सट्रैक्ट करते थे, इनमें से जो मिनिमम है, जैसे कि यहाँ पे इनमें से मिनिमम क्या है, ए, उसको सिलेक्ट करते थे डिस्ट्रेस एल्गोरिथम में। बेलमैन फोर्ड में ऐसा नहीं करना है। बेलमैन फोर्ड में 1 बाय 1 आपको सारे नोड्स को सिलेक्ट करने हैं और उनके जो एडजेसेंट नोड्स है उनकी डिस्टेंस की वैल्यूज को अपडेट करना है, इस तरह से। ओके, तो एक एक करके करते हैं, सीक्वेंस के हिसाब से करते हैं। सबसे पहला नोड क्या है, ए। तो ए के एडजेसेंट नोड्स क्या है, ए का एडजेसेंट नोड बी है और सी है, बिकॉज वी हैव एज फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू सी, ठीक है। तो ए से बी का डिस्टेंस कैसे अपडेट हो सकता है, देखिए इनिशियल अभी तक हमने बी का डिस्टेंस कितना करके रखा है कैलकुलेट, इनफाइनाइट, ठीक है।
लेकिन अगर मैं ए से बी जाती हूँ तो डिस्टेंस कितना होगा, ए का खुद का डिस्टेंस कितना है 0 प्लस ए से बी जाने का डिस्टेंस कितना है 4, यानी 0 प्लस 4। ओके, तो वैल्यू क्या मिली आपको 4। और कौन सी वैल्यू छोटी है, इनफाइनाइट छोटी है कि 4 छोटी है, द वैल्यू विच इज स्मॉलर उससे आपको वैल्यू अपडेट करनी है। बिकॉज 0 प्लस 4 दैट इज 4 इज लेस देन इनफाइनाइट, तो हम इसको अपडेट कर देंगे। अभी नई डिस्टेंस जो है बी की वो क्या हो गई 4। इसी तरह से ए के बाकी के जो एडजेसेंट नोड्स है, एडजेसेंट नोड्स यानी इमीडिएटली उसका नेबर जो है वो एडजेसेंट नोड्स होते हैं, उनको हम अपडेट करेंगे। तो ए का नेक्स्ट एडजेसेंट नोड क्या है सी। ठीक है, आप पहले सी को भी अपडेट कर सकते हो, फिर बी को, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, कोई सारे एडजेसेंट नोड्स को आप एक एक करके अपडेट कर लीजिए। तो ए का दूसरा नेक्स्ट एडजेसेंट नोड सी है, तो सी का डिस्टेंस अभी तक हमने क्या सेट करके रखा है इनफाइनाइट, लेकिन ए से होकर के सी जाएंगे तो डिस्टेंस कितना होता है 0, ए का खुद का डिस्टेंस क्या है 0, ठीक है, और 0 प्लस 2 विच इज 2, तो विच वैल्यू इज स्मॉलर 2 और इनफाइनाइट, 2 इज स्मॉलर, इसको हम अपडेट करेंगे एंड विल बिकम, ठीक है, सो दिस बिकम्स 2। ओके, तो ये ए के तो 2 ही एडजेसेंट नोड्स थे। अब हम, ये हमारा ए का हो गया, अब बी पे पहुंचते हैं। ठीक है, हम बी को मार्क करते हैं। अब हम बी के एडजेसेंट नोड्स को देखेंगे, तो पहले देख लेते हैं बी के एडजेसेंट नोड्स क्या है। हम बी से डी जा सकते हैं, बी से ई जा सकते हैं, बी से सी जा सकते हैं, दैट मीन्स डी ई सी, ये सारे क्या है बी के एडजेसेंट नोड्स है। तो ये 3 नोड्स जो बी के एडजेसेंट है उनको अपडेट करने की कोशिश करते हैं, उनके डिस्टेंस को अपडेट करने की कोशिश करते हैं 1 बाय 1। ठीक है, तो पहले से बी टू डी देखते हैं हम। देखिए डी का ओरिजिनल डिस्टेंस अभी तक क्या था, इनफाइनाइट था, लेकिन बी होकर के डी जाएंगे तो कितना डिस्टेंस होगा 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 इज 6, तो 6 छोटा है कि इनफाइनाइट छोटा है, 6 इज स्मॉलर, सो विल अपडेट इट एज 6। ओके, वैसे ही हम बी टू ई करेंगे, बी टू ई क्या होगा, ऑलरेडी ई का डिस्टेंस कितना है इनफाइनाइट, लेकिन बी होकर के ई जाएंगे तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस 4 प्लस 3, 4 plus 3 is 7. So which is smaller, infinite or 7? 7 is smaller. So we'll write 7. Okay. Then we'll see B2C. B2C C. अभी तक C का डिस्टेंस कितना मिला था 2. लेकिन B से C जाएंगे तो डिस्टेंस कितना होगा 4 plus 3 7. तो क्या स्मॉलर है, 7 स्मॉलर है कि 2 स्मॉलर है? 2 इज स्मॉलर, इसलिए हम इसको 2 ही रखेंगे। ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू है उसी को चूज करना है, तो हम यहाँ पे 2 ही रखेंगे। तो यहाँ पे हमने B के जो 3 एडजेसेंट नोड्स है उनको अपडेट कर लिया। ठीक है, तो बी के 3 एडजेसेंट नोड्स अपडेट हो गए। अब अगले नोड पे आते हैं, अब हम सी पे आते हैं। सी के एडजेसेंट नोड्स क्या है वो चेक करते हैं। तो लेट्स सी के एडजेसेंट नोड्स क्या है, C2B, C2B, C2E, यानी BDE, ये 3 एडजेसेंट नोड्स है। तो देखते हैं कि क्या BDE की वैल्यूज अपडेट होती है। तो लेट्स C2B देखते हैं। C2B का देखिए बी की ऑलरेडी डिस्टेंस कितनी मिली है हमको 4 मिली है, लेकिन सी होकर के बी जाएंगे तो कितना होगा, सी का डिस्टेंस कितना है 2, 2 plus 1 is 3, तो 3 is smaller or 4 is smaller, 3 is smaller, so we have got a smaller value, so we'll update it. Okay, we'll make it as 3, we'll make the distance as 3. अगर हमें उससे 4 से भी छोटा कुछ मिलता है तो ऑब्वियसली हम वही डिस्टेंस चूज करेंगे। ठीक है, हम डायरेक्टली ऐसे नहीं जाएंगे, हम ऐसे करके ऐसे जाएंगे। यहाँ से यहाँ तो 4 का डिस्टेंस मिल रहा है, लेकिन 2 plus 1 3, ये ज़्यादा स्मॉलर है, ये ज़्यादा शॉर्टेस्ट पाथ है, तो ऑब्वियसली हमको शॉर्टेस्ट पाथ ही तो बनाना है। ओके, तो C2B हमने कर लिया। ओके, ये जो प्रोसेस हम करते हैं यानी अपडेट करते हैं किसी एक वर्टेक्स की जो डिस्टेंस है उसको अपडेट करते हैं इस तरह से कंपेयर करके। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू ओरिजिनल डिस्टेंस को कंपेयर कर रहे हैं हम, एक नए नोड से जाने के बाद एक नया जो डिस्टेंस मिल रहा है उससे कंपेयर कर रहे हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिलैक्सेशन। This process is called as relaxing process, relaxing the edges or relaxation process, which will be shown in the algorithm. तो C2B हमने कर लिया, अब C2D करते हैं। तो C2D कितना होगा, देखिए D का ऑलरेडी डिस्टेंस कितना है 6, और C से होकर के D जाएंगे तो कितना होगा 2 plus 4 6, तो सेम है, सो नो नीड टू अपडेट D। ओके, C2E देखते हैं, E का ऑलरेडी डिस्टेंस कितना है 7, C2E जाएंगे तो कितना होगा 2 plus 5 7, अगेन द सेम वैल्यू, तो नो नीड टू अपडेट। ओके, तो सी के जो 3 नेबर्स है हमने उनको भी अपडेट कर लिया। ठीक है, अब बारी आती है डी की, तो देखते हैं डी के नेबर्स क्या है। अगर हम ग्राफ में देखें तो डी के कोई एडजेसेंट नोड्स नहीं है, क्योंकि डी से कोई भी एज नहीं जा रहा है, तो वी हैव नो एडजेसेंट एजेस फ्रॉम डी, तो इसको स्किप कर देते हैं। लेट्स मूव ऑन टू लास्ट नोड ई के क्या क्या एडजेसेंट नोड्स है देखते हैं। ई का एडजेसेंट नोड एक ही है, देखिए E2D, हम ई से सिर्फ डी जा सकते हैं, यानी डी ही है उसका एडजेसेंट नोड।
तो कितना वेट मिलेगा, देख लेट्स सी, ई से डी जाना है तो डी का ओरिजिनल डिस्टेंस कितना है 6, लेकिन ई होकर के अगर जाते हैं तो कितना होगा 7 माइनस 5 विच इज 2, तो 2 इज स्मॉलर और 6 इज स्मॉलर, 2 इज स्मॉलर, सो वी विल अपडेट इट, वी विल रिलैक्स, हम इस पर रिलैक्सेशन करेंगे और 2 जो है वो नया डिस्टेंस होगा। तो देखिए इस तरह से हमने 1 बाय 1 सारे नोड्स को कंसिडर किया, एक एक करके हमने सिर्फ मिनिमम डिस्टेंस वाले नोड को एक्सट्रैक्ट करके सिलेक्ट करके कंसिडर नहीं किया, हमने एक एक करके सारे नोड्स को पिकअप किया। ऐसा डायनेमिक प्रोग्रामिंग होता है, आप सारी पॉसिबिलिटीज कंसिडर करते हो। तो हमने एक एक करके सबके एडजेसेंट नोड्स को रिलैक्स किया, अपडेट किया। अब ये जो वैल्यूज आपको मिली है अपडेट करने के बाद, सो वो कुछ इस तरह से आपको होती है। ये जो फाइनल डिस्टेंसेस आपको मिले हैं वो हम पास 1 में लिखेंगे। सारे नोड्स के एडजेसेंट नोड्स को अपडेट करने के बाद का जो स्टेटस होता है, दिस मीन्स आपका जो पास 1 है या आइटरेशन 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और एट द एंड ऑफ पास 1 के खत्म होने के बाद फाइनल वैल्यूज क्या मिली है, लेट्स राइट इट डाउन। ए का डिस्टेंस कितना मिला है 0, बी का डिस्टेंस 3, सी का डिस्टेंस 2, बी का डिस्टेंस भी 2, ई का डिस्टेंस 7, ठीक है। तो ये हमको एट द एंड ऑफ पास 1 दिस आर द वैल्यूज ऑफ डिस्टेंसेस। टॉकिंग अबाउट पेरेंट नोड्स देखते हैं, ठीक है। ए का पेरेंट तो ए ही होगा, ठीक है। बी का पेरेंट देखते हैं हम। अब पेरेंट नोड कैसे देखना, सी हमको बी का डिस्टेंस क्या मिला 3 मिला, ये 3 की वैल्यू कैसे मिली, 2 + 1 करके ये 3 मिला है ना, 2 + 1 करके ये 3 मिला। तो ये 3 की वैल्यू जिस नोड की वजह से मिल रही है वो आपका पेरेंट नोड होगा, ठीक है। बी का पेरेंट ए नहीं होगा, बी का पेरेंट सी होगा, बिकॉज ए से बी पे तो 4 मिल रहा था। ये 3 वैल्यू जो 3 डिस्टेंस है वो कैसे मिली है, सी से बी जाने पर आपको मिली है। सी का डिस्टेंस 2 + 1 3, तो सी उसका पेरेंट होगा। अब देखते हैं सी का पेरेंट क्या है। सी का डिस्टेंस कितना मिला है, डिस्टेंस को देखो, डिस्टेंस कितना है 2, और ये 2 की वैल्यू कैसे मिली है 0 + 2, यानी कि ए से अगर आप आ रहे हो सी में तो फिर आपको ये 2 मिल रहा है डिस्टेंस, यानी सी का पेरेंट क्या है ए। बी का देखते हैं, बी का डिस्टेंस 2 है, ये 2 कैसे मिला 7 - 5 करके 2 मिला है, ठीक है। ठीक है, ऐसे नहीं मिला आपको 4 + 2 6 नहीं मिला, आपको 2 मिला है, यानी 7 - 5 2 मिला है, यानी ई से जाने के बाद ई टू डी जाने के बाद आपको 2 मिला है, यानी डी का पेरेंट क्या हुआ ई हुआ। ऐसे ही ई का पेरेंट देखिए, ई की वैल्यू कितनी है 7, ये 7 आपको कैसे मिला है, लेट्स सी, आपको 2 + 5 7 इस तरह से मिला है, यानी कि ई का पेरेंट क्या है सी। सो एट द एंड ऑफ पास 1 ये आपके फाइनल वैल्यूज है। अब वही सेम चीज़ हमें रिपीट करनी है पास 2 में। हम फिर से एक एक नोड को कंसिडर करेंगे, पहले ए को कंसिडर करेंगे, बी को, ए के एडजेसेंट नोड्स को कंसिडर करेंगे, बी के एडजेसेंट नोड्स को, इस तरह से पांचों के एडजेसेंट नोड्स को दे करके हम चेक करेंगे कि क्या हमें कुछ इससे भी मिनिमम डिस्टेंसेस मिल पा रहे हैं कि नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पास। ये तो पहला पास हो गया, पहले पास के एंड में हमको ये वैल्यूज मिली। पास 2 में देखते हैं, फिर से हम शुरू करते हैं ए से, ठीक है। तो हम ए के एडजेसेंट नोड्स देखेंगे। सो लेट्स सी हियर, ए के एडजेसेंट नोड्स क्या है, बी और सी है, ठीक है। तो क्या हमको मिलेगा, सी बी का अभी तक का डिस्टेंस, यानी पास 1 के खत्म होने तक हमको बी का डिस्टेंस कितना मिला था 3, और फिर से अगर हम ए टू बी जाएंगे तो कितना मिलेगा 0 + 4 4, तो 4 छोटा है कि 3 छोटा है, 3 छोटा है, तो हम उसको एज इट इज रखेंगे, हम उसको अपडेट नहीं करेंगे। अपडेट तभी करना है जब आपको एक नया छोटा वैल्यू, नया छोटा डिस्टेंस मिल जा रहा है। ओके, तो नेक्स्ट ए का एडजेसेंट नोड क्या है सी। तो अभी सी का डिस्टेंस कितना है 2, और ए से यहाँ से जाएंगे तो कितना मिलेगा 0 + 2 = 2, तो ऑलरेडी 2 है, वही स्मॉलर डिस्टेंस है, तो इसको भी अपडेट करने की जरूरत है। यानी कि ए के एडजेसेंट नोड्स को के डिस्टेंसेस को हमने अपडेट कर लिया और हमने देखा कोई चेंज नहीं हो रहा है। ए का काम तो हो गया, अब हम बी पे फोकस करते हैं, सिर्फ नोड बी फोकस करेंगे, यानी बी के एडजेसेंट नोड्स को फोकस करेंगे। तो बी के एडजेसेंट नोड्स क्या है, डी, ई और सी, ये 3 एडजेसेंट नोड्स है बी के। ओके, तो देखते हैं डी का डिस्टेंस अभी तक आपको क्या मिला है 2, अगर बी से होकर के डी जाएंगे तो क्या होगा 3 + 2 विच इज 5, तो 2 इज स्मॉलर और 5 इज स्मॉलर, 2 इज स्मॉलर, सो विल कीप इट एज इट इज। ओके, बी से सी का देखते हैं, सी का डिस्टेंस कितना है 2, ठीक है, लेकिन बी से सी आएंगे तो कितना डिस्टेंस होगा 3 + 3 विच इज 6, तो 6 तो बड़ा वैल्यू होता है, 2 इज स्मॉलर, सो विल कीप इट एज इट इज। नेक्स्ट बी टू ई को एडजस्ट करना है, रिलैक्स करना है, चेक करते हैं कि छोटा डिस्टेंस मिलता है क्या। ई का ऑलरेडी डिस्टेंस कितना है 7, लेकिन अगर मैं बी से ई जाती हूँ तो बी का डिस्टेंस कितना है 3, तो 3 + 3 = 6, तो मुझे 7 से एक छोटा डिस्टेंस मिल गया है, दैट मीन्स 6 इज द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट
डिस्टेंस ऑफ ई, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपडेट हुआ, तो हमने इस तरह से बी के तीनों भी एडजेसेंट नोड्स को चेक कर लिया कि अपडेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो बी तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं सी पर, सी नोड, और सी के एडजेसेंट नोड्स को देखते हैं। तो सी पे फोकस करते हैं, सी के एडजेसेंट नोड्स क्या है, सी टू बी, सी टू डी, सी टू ई। ओके, तो देखते हैं, पहले एक एक करके करते हैं। सी टू बी, बी का ऑलरेडी डिस्टेंस कितना है 3, लेकिन सी टू बी जाएंगे तो क्या होगा 2 + 1 3, सो वी ऑलरेडी हैव 3, सो कोई जरूरत नहीं है अपडेट करने की। सी टू डी देखते हैं, डी का डी का डिस्टेंस कितना है 2, ठीक है। और अगर हम सी से डी जाते हैं तो डिस्टेंस कितना होगा 2 + 4 6, सो 2 इज स्मॉलर, सो विल कीप इट एज इट इज। ओके, अब सी टू ई, ई का ऑलरेडी डिस्टेंस कितना है 6, और अगर हम सी से ई जाते हैं तो कितना होगा 2 + 5 7, ओके, बट 6 इज स्मॉलर, तो जो स्मॉलर है उसी को रखना है, ठीक है। तो सी के सारे एडजेसेंट नोड्स में चेक कर लिए। अब आ जाते हैं डी पे, डी का तो कोई है ही नहीं एडजेसेंट नोड, तो कुछ ऑपरेशंस नहीं होंगे। ओके, अब आ जाते हैं ई पे, ई का एडजेसेंट नोड क्या है डी, ठीक है। डी का ऑलरेडी डिस्टेंस कितना है 2, लेकिन अगर मैं ई टू डी जाती हूँ तो क्या होगा 6 - 5 विच इज 1, तो 2 से भी एक स्मॉलर डिस्टेंस 1 जो है वो आपको मिल गया है। ओके, सो 1 इज स्मॉलर देन 2, सो ये आपको एक नया डिस्टेंस मिल गया। ओके, तो इस तरह से फिर से हमने पांचों नोड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एडजेसेंट वर्टेक्स को चेक किया, और हमने देखा कि वो जो एडजेसेंट वर्टेक्स है क्या उनका और इस पहले से भी कोई शॉर्टर डिस्टेंस मिल सकता है क्या। ओके, तो ये हमारा जब पांचों नोड्स के एडजेसेंट नोड्स को हमने चेक कर लिया है, उसके बाद हमें क्या वैल्यूज मिल रही है, फाइनल क्या डिस्टेंसेस मिल रही है, वो अभी हम इस टेबल में नोट डाउन कर लेते हैं। तो देखते हैं, ए का डिस्टेंस क्या है 0, बी का हमको डिस्टेंस मिला है 3, सी का क्या है 2, डी का क्या है 1, ठीक है, डी का हमको 1 मिला है, और ई का क्या मिला है 6, ठीक है। पेरेंट नोड्स कर लेते हैं, सोर्स का पेरेंट तो सोर्स ही होता है, ठीक है, ए हमारा सोर्स है तो उसका पेरेंट यही होगा। बी का देखते हैं, बी का डिस्टेंस कितना है 3, और ये 3 कैसे मिल रहा है 2 + 1 करके 3 मिल रहा है, यानी बी का पेरेंट क्या हुआ सी हुआ। सी का डिस्टेंस हमें कितना मिला है 2, तो ये 2 कैसे मिलता है 0 + 2 2 मिल रहा है, यानी सी का पेरेंट क्या है ए है। डी की वैल्यू हमें 1 मिल रही है, ये 1 कैसे मिल रहा है 6 - 5 करके 1 मिल रहा है, यानी डी का पेरेंट क्या है ई है। ओके, फाइनली ई की वैल्यू देखते हैं, ई का डिस्टेंस कितना है 6, ये 6 हमें कैसे मिला 3 + 3 करके हमें 6 मिला है, यानी ई का पेरेंट क्या है बी। ओके, तो पास 2 के एंड होते होते दीज आर द न्यू वैल्यूज दैट वी हैव गॉट। अब कंपेयर द टेबल्स ऑफ पास 1 एंड पास 2, क्या आपको कोई चेंज नोटिस कर पा रहे हो? नाउ यू कैन सी हियर डी और ई की वैल्यूज चेंज हुई है, अपडेट हुई है ना। आपको एक नया टेबल मिला है, नए और छोटे डिस्टेंसेस आपको मिले हैं एट द एंड ऑफ पास 2, दैट मीन्स आपको एक और पास कंटिन्यू करना होगा, यू हैव टू मूव अहेड विद अनदर पास। ओके, हम कब तक एक एक पास कंटिन्यू करेंगे? देखिए, एक टाइम ऐसा आएगा, या तो आप पूरा 4 पासेस कीजिए, यानी कि n-1 नंबर ऑफ पासेस कीजिए, 5 नोड है तो 4 पासेस आपको एल्गोरिथम के हिसाब से तो करना ही है, लेकिन कई बार उसके पहले भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप ऐसा नोटिस करेंगे कि करंट पास और प्रीवियस पास का रिजल्ट जब सेम होगा, एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है। मान लीजिए पास 2 का जो रिजल्ट है, फाइनल आंसर्स है, वो पास 1 के फाइनल आंसर से एग्जैक्टली सेम होते, तो फिर हम थर्ड पास में नहीं जाते। ओके, हमें और एक नया पास करने की ज़रूरत नहीं है अगर प्रीवियस 2 पासेस की वैल्यूज एग्जैक्टली सेम हो, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, पास 1 और पास 2 की वैल्यूज अलग अलग है। दैट मीन्स पॉसिबिलिटी है कि आपको इससे भी छोटे डिस्टेंस मिल सकते हैं, तो एक बार चांस लेना होगा, हमें एक और पास करना पड़ेगा। ओके, तो फिर से एक और पास करते हैं यूजिंग द सेम मेथड। ओके, तो जल्दी से कर लेते हैं हम। ओके, एक एक करके करेंगे। हम ए को सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, एक एक करके हर एक नोड के एडजेसेंट नोड्स को चेक कीजिए। ए के एडजेसेंट नोड्स है बी और सी, बी का डिस्टेंस है 3, तो 0 + 4 इज 4, 4 और 3 में से 3 स्मॉलेस्ट है, तो हम 3 को ही रखेंगे। सी का दूसरा एडजेसेंट नोड क्या है, ए का दूसरा एडजेसेंट नोड क्या है सी, सी की डिस्टेंस है 2, 0 + 2 इज 2, एंड वी ऑलरेडी हैव 2, सो नो नीड टू अपडेट। ओके, ये ए का हो गया। अब बी पे आ जाते हैं। बी के एडजेसेंट नोड्स क्या है, B2D, B2E, B2C। ओके, एक एक करके पढ़ते हैं। डी का डिस्टेंस कितना मिला है 1, और अगर हम ऐसे जाते हैं डी से डी जाते हैं तो 3 + 2 5 होगा, तो 5 स्मॉलर है कि 1 स्मॉलर है, 1 स्मॉलर है, तो इसको एज इट इज रखेंगे। B2E देखते हैं, ई का डिस्टेंस अभी तक का है 6, और अभी अगर हम देखें तो 3 + 3 इज ऑल्सो 6, सो 6 एंड 6 में से 6 ही मिनिमम है, तो अपडेट करने की जरूरत नहीं। ओके, B2C, सी का डिस्टेंस क्या मिला है 2, ठीक है,
सी का डिस्टेंस मिला है 2 और बी से सी जाएंगे तो कितना मिलेगा 3 + 3 6, तो 2 स्मॉलर है, हम उसको एज इट इज रखेंगे। तो ये बी का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं सी। सी के एडजेसेंट नोड्स क्या है या नेबर्स क्या है, C2B, C2D, C2E, ठीक है, ये एडजेसेंट नोड्स है। तो एक एक करके करते हैं। C2B, B का डिस्टेंस कितना है 3 और C से B जाएंगे तो कितना मिलेगा 2 + 1 3, सो वी ऑलरेडी हैव 3, तो नो नीड टू अपडेट। C2D, C2D, D का डिस्टेंस कितना है 1 और C से D जाएंगे तो डिस्टेंस कितना होगा 2 + 4 6, सो 1 इज स्मॉलर, सो वी कीप इट एज इट इज। C2E, E का डिस्टेंस कितना है 6 और C2E जाएंगे तो कितना होगा 2 + 5 7, तो 6 इज स्मॉलर, सो वी कीप इट एज इट इज, तो कोई चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये सी के एडजेसेंट नोड्स भी चेक कर लिए। अब डी के एडजेसेंट नोड्स चेक करेंगे। तो जैसे हमें पता है डी का तो कोई एडजेसेंट नोड है ही नहीं, तो उसको हम स्किप करेंगे, इग्नोर करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज ई। तो ई का एडजेसेंट नोड क्या है, डी है, एक ही है। ओके, तो देखते हैं डी का ऑलरेडी डिस्टेंस कितना है 1 और ई से डी जाएंगे तो कितना होगा 6 - 5 1, सो 1 इज स्मॉलर, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया। ओके, दैट मीन्स हमने पांचों नोड्स के एडजेसेंट नोड्स को चेक कर लिए। ओके, तो देखते हैं कि ये पांचों नोट्स के एडजेसेंट नोट्स चेक करने के बाद हमारा पास 3 भी खत्म हो गया है, थर्ड पास यानी कि थर्ड आइट्रेशन भी खत्म हो गया है। तो देखते हैं बाय द एंड ऑफ थर्ड पास हमें क्या वैल्यूज मिली है। ओके, सो लेट्स राइट डाउन द वैल्यूज। सबकी डिस्टेंसेस लिख लेते हैं पहले। 0, ए की डिस्टेंस है 0, बी का डिस्टेंस है 3, सी का डिस्टेंस है 2, डी का डिस्टेंस 1 और ई का डिस्टेंस है 6। अब हम पेरेंट नोट्स भी लिख लेते हैं, पेरेंट का इंफॉर्मेशन लिखते हैं। ए का डिस्टेंस, ए का पेरेंट एक ही होगा, ठीक है। बी का पेरेंट, बी का डिस्टेंस 3 है, वो 3 कैसे मिला हमको 2 + 1 करके 3 मिला, यानी बी का पेरेंट क्या होगा सी। सी का डिस्टेंस है 2, तो ये 2 कैसे मिला 0 + 2 करके 2 मिला, यानी सी का पेरेंट क्या है ए। डी का डिस्टेंस 1 मिला है, तो ये 1 कैसे मिला 6 - 5 करके 1 मिला है, इसका मतलब डी का पेरेंट क्या है ई। और ई का डिस्टेंस हमें 6 मिला है, ये 6 कैसे मिला है 3 + 3 करके 6 मिला है, यानी ई का पेरेंट क्या है बी। अभी हम कंपेयर करते हैं ये वाला पास, करंट पास और उसका प्रीवियस पास, क्या दोनों की वैल्यूज एकदम सेम है। सो यू कैन सी 03216, 03216, ओके, सेम वैल्यूज ऑफ डिस्टेंसेस यू हैव गॉट। दैट मीन्स अगर आप पास 4 भी करते हैं तो वापस वही वैल्यूज रिपीट होने वाली है, तो कैलकुलेशन और करने की, आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। पास 3 के खत्म होते होते आपको जो भी अभी जो डिस्टेंसेस मिली है यही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको नहीं मिलेगा। ओके, सो दिस इज योर फाइनल डिस्टेंस एंड पेरेंट इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन की मदद से अब हम हमारा एसपीटी जो है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्री जो है, उसको डिजाइन कर लेते हैं। सो लेट्स डिजाइन शॉर्टेस्ट पाथ ट्री। वही तो हमारा टारगेट था कि हमें एसपीटी बनाना है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्री बनाना है। ओके, डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। ए का डिस्टेंस क्या है 0, बी का 3, ठीक है, सी का 2, सी का 2, बी का 1 और ई का 6, ठीक है। ये डिस्टेंस इंफॉर्मेशन हमने लिख ली एसपीटी में। अब हम कनेक्ट करेंगे पेरेंट इंफॉर्मेशन से। ए का पेरेंट तो ए ही है, बी का पेरेंट क्या है, ठीक है, बी का पेरेंट क्या है सी, यानी कि हमको बी को इस तरह से, बी कैसे पहुंचे सी से पहुंचे, इसलिए हम इस तरह से एरो बनाएंगे, ठीक है, सी टू बी एरो बनाएंगे, क्योंकि हमको बी अगर पहुंचना है तो हमें सी से होकर के बी पहुंचना है। तो बी का पेरेंट सी है। फिर देखते हैं सी का पेरेंट क्या है ए, सी का पेरेंट क्या है ए, यानी हमें ए से सी पहुंचना है, ठीक है। डी का पेरेंट क्या है ई, बी का पेरेंट है ई, यानी मुझे ई से डी पहुंचना है, ठीक है। ई का पेरेंट क्या है बी, ई का पेरेंट है बी, यानी मुझे बी से ई पहुंचना है, ठीक है। इस तरह से मैंने कनेक्ट कर लिया। अब ये सारे जो एजेस है उनकी जो ओरिजिनल वैल्यूज है हम ग्राफ से कॉपी कर लेंगे। ये 2 था, दिस वाज 1, ओके, ये है 3 और ये है -5। यू कैन चेक, देखिए 0 + 2 2, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 - 5 1, ओके। So this is your final SPT with the help of Bellman-Ford algorithm. So Bellman-Ford algorithm को इस तरह से हमें 5 बाय 5 करना है, और हर 5 में याद रखिए आपको हर एक नोड को एक एक करके कंसिडर करना है और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एडजेसेंट एजेस है उनको अपडेट करने की कोशिश करनी है या रिलैक्स करने की कोशिश करनी है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू कि बेलमैन-फोर्ड में प्रॉब्लम क्या होता है। अब बेलमैन-फोर्ड का प्रॉब्लम ये है कि कई बार अगर नेगेटिव वेट्स होते हैं ग्राफ में, क्योंकि बेलमैन-फोर्ड तो नेगेटिव वेट वाले ग्राफ में ही अप्लाई किया जाता है,
अब ये नेगेटिव वेट्स होने की वजह से कई बार एक नेगेटिव साइकिल या नेगेटिव वेट लूप तैयार हो जाता है ग्राफ में। उससे यह होता है कि आपको एक मिनिमम यानी हर बार आप कंटिन्यू करते जाइए प्रोसेस। वैसे तो बेलमन फोर्ड n-1 पासेस में आपको फाइनल रिजल्ट कैसे भी मिल ही जाना चाहिए, उससे ज़्यादा पासेस की ज़रूरत नहीं है। n-1 पास में मैक्स n-1 पासेस के बाद यू गेट द फाइनल एसपीटी। बट बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइकिल समटाइम्स इवन इफ यू गो ऑन आफ्टर n-1 पासेस, n-1 पासेस के बाद भी अगर आप और पासेस करते हो तो आप देखोगे कि हर बार आपको एक शॉर्टर वैल्यू, शॉर्टर डिस्टेंसेस की वैल्यू मिलती जा रही है बिकॉज ऑफ नेगेटिव वेट्स। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो उसका मतलब है कि ग्राफ में कहीं नेगेटिव साइकिल है, और वो नेगेटिव साइकिल की वजह से आपको जो है आपको एसपीटी कभी मिलेगा ही नहीं, बिकॉज वो इनफाइनाइट, वो प्रोसेस चलता ही जाएगा। यू विल उससे भी छोटा वैल्यू आपको हर बार मिलते ही जाएगा। तो कई बार गेट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ड्रॉबैक है बेलमन फोर्ड का। तो द ड्रॉबैक इज इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू अ ग्राफ वेयर देयर आर नेगेटिव साइकिल्स। ओके, तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि चेक करके बताना है आपको कि ग्राफ में क्या कोई नेगेटिव साइकिल है। तो आप 4 पासेस करेंगे, अगर 5 वर्टेक्स है तो आप मैक्स 4 पासेस करेंगे। ठीक है, और 5th पास करने के बाद भी आपको दिख रहा है कि आपको फिर भी नए वैल्यूज मिल रही है। जनरली हम स्टॉप कब करते हैं बेलमन फोर्ड, जब आपको प्रीवियस 2 पासेस की वैल्यू एग्जैक्टली अलाइक मिल रही है। तो अगर 5 नोड वाला ग्राफ है तो 3rd और 4th पास की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगा कि 3rd पास और 4th पास का जो वैल्यू है, रिजल्ट है, वो सेम होगा। लेकिन मान लीजिए आप 5th पास करते हो, 5th पास में भी आपको एक नया डेटा मिला, नई डिस्टेंसेस मिली। 6th पास में भी 6th वाला जो पास है यानी आइट्रेशन है, आइट्रेशन 6 में भी आपको और नई वैल्यूज मिली। दैट मीन्स आपके ग्राफ में नेगेटिव साइकिल्स है। तो इस तरह से हम खुद ही डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या कोई गिवन ग्राफ में नेगेटिव साइकिल है कि नहीं। तो कैसे डिटेक्शन होगा, n-1 पासेस के बाद भी एक और पास ट्राई कीजिए। ठीक है, तो n-1 पासेस के बाद एक और पास करने पर अगर आपको स्टिल स्मॉलर वैल्यूज मिलती है, स्टिल स्मॉलर वैल्यू ऑफ डिस्टेंसेस मिलती है, ठीक है, तो फिर ये इंडिकेट करता है कि ग्राफ में नेगेटिव साइकिल्स है।